Well, dear students, this is a class of TGN 501 Geoinformatics and Nanotechnology and Precision Farming, and we were discussing Unit 1 and Unit 2. Today we will understand Unit 3. We will start with Unit 3, and in Unit 3, first component is Spatial Data and their Management in GIS. तो हम ये समझेंगे कि what are the types of data, what is spatial data, and what is data basically. So let's begin. Basically, I also want to highlight that in the practical class, we have to deal with GIS softwares. So we will understand the GIS software types, what is GIS software, and there is also need of spatial data understanding. Therefore, we are going to understand spatial data and its types. So basically what we were understanding GIS, हमें चीज़ समझ में भी आ गई है कि GIS क्या होता है. Okay, but in a nutshell, I just want to tell you that geographic information and system, हमें एक चीज़ पता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रेस करके उसको इंटरप्रेट करना GIS में आता है. सो geographic means it implies that location of the data items are known or can be calculated in terms of geographic coordinates. ये हमने this thing we have discussed in the previous lectures. So latitude and longitude, okay, and information, what do you understand by information means? The data, the data in a GIS, wait a minute, in GIS are organized to yield useful knowledge often as colored maps and images, but also as statistically graphics, tables and various on screen responses to interactive queries. तो हम इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जाता है, किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इंफॉर्मेशन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये GIS में आता है. सिस्टम मीन्स, सिस्टम यू ऑल नो दैट सिस्टम मीन्स दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स, दैट there are basically various elements in systems and elements interact with each other, so that is called as system. So various elements are there, these elements are there and they interact. So implies that GIS is made up of from several interrelated and linked components with different functions. The GIS have functional capabilities for data capture, input manipulation, transformation, visualization, combination, query, analysis, modeling and output. So this means it is a functional capabilities for all these things. So in the previous lectures we have understood the differences between GPS and GIS. In GIS basically it deals with the people, data, procedures, hardware and software. So these are the 5 components that are very important in understanding of GIS. So next is characterizing geographic features. Basically, if any object is lying on the earth, how can we interpret it? So all geographic features on the earth's surface can be characterized as one of the 3 basic types. So you have to understand these 3 basic types. Number 1 is point. Point data exists when a feature is associated with a single location in space. Example, well, a weather station. Suppose some building is lying there, so we can interpret by that this is that building, this is building A, this is building B. Okay, so by point feature we can do so. Next is linear data. Linear data exists when a feature's location is described by a string of spatial coordinates. Suppose if there is a linear data, suppose we join the 2 points, so this has now become the linear data. So how the things are there, that examples are there, like rivers, roads, pipelines. Okay, so we have just joined the points. Now third is aerial data exists when a feature is described by closed string of spatial data. सो एरियल डेटा, अगर आप कोई ऊपर से डेटा देखेंगे तो एरियल डेटा अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि पूरा कैप्चर्ड है, ठीक है, पूरा क्लोज्ड है. तो सो नाउ इट हैज़ बिकम अ पॉलीगन. सो दिस टाइप ऑफ aerial data is called as polygon data.
So polygon data, polygon type. So forest stands, soil classification areas, administrative boundaries and climate zones. So these things are just interpreted as polygon type. We will understand, हम इसको basically सारी चीज़ें समझेंगे अभी next slides में. So basically अब GIS data type समझते हैं कि GIS में जो डेटा है, डेटा के कितने टाइप होते हैं और उसका मतलब क्या होता है. तो accordingly GIS technology utilizes two basic types of data. Number one is spatial data, number two is attribute data. ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, डेटा के टाइप्स ध्यान रखने हैं. So what is spatial data? Spatial data describes the absolute and relative location of geographic features. So absolute and relative. Relative means some standard is there, and in reference to that we just locate that object. And the second is attribute data. Suppose this data is A data, suppose this data is B data, तो हम इसको A data B data करके बोलेंगे तो स्पेशल डेटा में आएगा. एट्रीब्यूट डेटा में क्या होगा, डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्पेशल फीचर्स, means characteristics are just highlighted there. So coordinate location of the watershed would be spatial data. Suppose there is a watershed from the Google Earth, you are seeing that there is a watershed. Wait a minute, let me choose the different color for better understanding. So suppose there is a watershed and you are locating from the satellite, and this is called as spatial data. But if the characteristics of that watershed, if we just interpret that there is a catchment area, type of soil, elevation, so we are just giving the characteristics of that watershed. So this would be attribute data. So number one type is spatial data. So what is spatial data? Let us try to understand more deeply. That traditionally spatial data has been stored and presented in the form of map. Okay, so spatial data simply means that there is a map and we are just locating that object. So three basic types of spatial data models have evolved for storing geographical data digitally. So but basically two important spatial data types are there. Okay, only two types of data are there, spatial data types. Number one is raster, बोलते हैं जिसे, and vector. So raster and vector. So in this spatial data type, number one is raster type. So let us try to understand what is raster. So data is classified as continuous, such as in an image, or thematic, where each cell denotes a feature type. Here you can see there are numerous cells there, there are various cells there, these cells are there. Okay, so these cells store images as rows and columns of number with a digital number for each cell. So every cell is having one digital number. Okay, every cell is having one digital number, digital value or digital number. So it stores images as rows and columns of numbers with a digital value. Okay, and units are usually represented as square grid cells, and they are that are uniform in size. They are uniform in size and they are square grid cells. So numerous data formats are there. We will try to understand more deeply in next slides. Well, second type is vector type. अभी हम spatial और vector, spatial and vector raster and vector types that are the types of spatial data. We will discuss these things in next slides more deeply. So in the vector type, it allows user to specify specific spatial locations. Okay, it not broken up into discrete grid squares. So discrete grid squares में broken नहीं है, and information about points, lines and polygon is encoded and stored as collection of x and y coordinates. Here you can see this is a type of vector data. Okay, so we will try to understand it more deeply. Let us understand. So let's move one by one in broad. So number one is vector data. So what is vector data? Vector data consists of individual points. So हमें क्या ध्यान रखना है कि individual points हैं vector data में, which are stored as pairs of x y coordinates. So x y coordinates हैं, ठीक है. Stored कैसे हो रहा है vector data, कैसे store हो रहा है
XY coordinates form में. The point may be joined in a particular order to create lines or joined into closed rings to create polygon. तो ये तो पहला डेटा टाइप है पॉइंट, जो वेक्टर डेटा का टाइप है. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्पेशल डेटा. ठीक है, स्पेशल डेटा का ही टाइप्स पढ़ रहे हैं अभी. तो वेक्टर डेटा जो पहला है हमारा, वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा, दो टाइप है हमारे. तो वेक्टर डेटा में क्या बता रहे हैं, तो पॉइंट्स हो सकता है, ये पॉइंट जुड़ के एक लीनियर बना सकते हैं. ठीक है, लाइंस बना सकते हैं, या ये शेप बना सकते हैं, कोई पॉलीगन बना सकते हैं. ठीक है, सो let's try to understand it. So basically there are three main vector data types in GIS. Number one is points, number two is lines, and number three is polygon. So I think this is clear to you all. So points. So what is points? So vector points are simply XY coordinates. Generally they are latitude and longitude with a spatial reference frame. So when features are too small to be represented as polygons, points are used. So जब अगर बहुत ही छोटा है, उसको पॉलीगन की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, उसमें उसको बहुत छोटा होता है, तो आप उसे पॉइंट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हाउस है, पॉपुलेशन है, तो आप यहाँ पे कुछ लोकेट करना चाहते हैं, तो आप इसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज लाइंस. देखिए लाइंस क्या होगा, अगर हम लाइंस की बात करें, सो वेक्टर लाइंस कनेक्ट ईच वर्टेक्स विद अ पाथ. ओके, लाइंस से करते हैं बेसिकली. आप देखेंगे मैंने आपको बताया अभी, जैसे रिवर, रोड, वेट अ मिनट, रिवर, रोड एंड रेलवे लाइंस. ठीक है, ये लाइंस को दिखाना, रोड को दिखाना, रिवर को दिखाना, तो ये आप कैसे दिखाएंगे, पॉइंट से दिखा नहीं सकते. दैट्स वाई वी जस्ट कनेक्ट द डॉट्स एंड जस्ट मेक अ लाइन. तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर डेटा का. नंबर 2 था ये. नंबर 3 है, व्हेन यू जॉइन अ सेट ऑफ वर्टिसेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड क्लोज इट, दिस इज नाउ अ वेक्टर पॉलीगन फीचर. ओके, दिस इज नाउ अ वेक्टर पॉलीगन फीचर. इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, सारा क्लोज कर देंगे, तो ये वेक्टर पॉलीगन बन जाएगा. नाउ आई होप आपको वेक्टर डेटा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा. नाउ नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड रास्टर डेटा. रास्टर डेटा जिसे बोलते हैं, तो रास्टर डेटा इज मेड अप ऑफ पिक्सल हैज़ एन एसोसिएटेड वैल्यू. जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक सेल का एक डिजिटल नंबर होता है. सो is made up of pixel as an associated value. Simplifying slightly, a digital photograph is an example of raster data set where each pixel value corresponds to a particular color. ठीक है, आपके डिफरेंट कलर का एक पिक्सल वैल्यू होती है. In GIS, the pixel values may represent elevation above sea level or chemical concentrations or rainfall etc. So पिक्सल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर सकती हैं, कि हाइट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं. हम कैसे बताएंगे इसको, अभी हम ऐसे कैसे समझेंगे इसको कि एलिवेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेगी. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. उस चीज़ को समझने से पहले हमें 5 टाइप्स ऑफ रास्टर डेटा पता होना चाहिए. ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ रास्टर डेटा होते हैं जो आप देख रहे हैं. आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो 5 टाइप्स ऑफ रास्टर डेटा होते हैं. नंबर 1 इज सैटेलाइट इमेजरी. नंबर 1 सैटेलाइट इमेजरी. वेट अ मिनट, सैटेलाइट इमेजरी. नंबर 2 इज़ बाइनरी स्कैन फाइल. ये आपको प्लीज़ याद कर लेना, आप इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एंड 3rd इज़ ग्राफिक्स फाइल्स. नंबर 4th इज़ डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स. नंबर 5th इज़ डिजिटल ऑर्थो फोटोज. सो हमने रास्टर डेटा, हमने वेक्टर डेटा के 3 टाइप्स पढ़ लिए और रास्टर के 5 टाइप्स. तो इसको हम समझते हैं कि 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो सैटेलाइट इमेजरी क्या होती है, सैटेलाइट इमेजरी क्या होती है. Satellite imagery are image of the earth ortho picture collected by imaging satellites operated by governments and business around the world. Such data are recorded in raster format. तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देखोगे कि जो इमेज ऑफ द अर्थ होती है, जो अर्थ की इमेज, आपने इसको रास्टर फॉर्म में, इसको आप क्यूबिकल फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं. ठीक है, तो ये जो आपने चीज़, इसको आप जूम करेंगे तो ये पिक्सल्स टाइप दिखेगा. तो इस चीज़ को हम रास्टर सैटेलाइट इमेजरी बोलते हैं. और सैटेलाइट इमेजरी किसका टाइप है, रास्टर का. सैटेलाइट इमेजेस कैन बी डिस्प्लेड इन ब्लैक एंड वाइट और इन कलर. तो ब्लैक एंड वाइट में भी बताया जा सकता है सैटेलाइट इमेजेस. नंबर 1 है सैटेलाइट इमेजरी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसको.
Satellite images can also simulate color photographs if they have pixel values from the red, green and blue color bands. तो ये बैंड्स होते हैं, इसके बैंड्स के एक्यूमुलेशन से आपकी कलर फोटोग्राफ बन सकती है. तो डिफरेंट जैसे रेड का बैंड है, ग्रीन का बैंड है, ब्लू का बैंड है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको इसका एक परफेक्ट इमेज बना के देता है. सो सेकेंड टाइप इज़ बाइनरी स्कैन फाइल. सो पहली थी आपकी सैटेलाइट इमेजरी, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज बाइनरी स्कैन फाइल्स. तो बाइनरी स्कैन फाइल क्या होती है? बाइनरी से हमें समझ में आता है कि अगर आपने 12th में आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस, तो 0 और 1 की वैल्यू रखते हैं इसमें. तो बाइनरी इमेज इज़ वन दैट consists of pixels that can have one of exactly two colors, usually black and white. या तो black होगा या white होगा, उससे हम इमेजरी बनाते हैं, इमेजनी कोशिश करते हैं. बाइनरी इमेज ऑल्सो कॉल्ड बाई-लेवल और टू लेवल. दिस मीन्स दैट ईच पिक्सल इज स्टोर्ड एज सिंगल बिट दैट इज 0 और 1. तो इसमें जो एक पिक्सल की बात करते हैं, या तो ब्लैक कलर होगा या वाइट कलर होगा. तो ब्लैक कलर होगा तो सपोज वो 0 होगा, उसको वैल्यू दी होगी, और वाइट वाले होगा तो उसको 1 दी होगी. तो बाइनरी स्कैन फाइल इज अनदर अ टाइप. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. नाउ दिस इज ग्राफिक फाइल. सो दिस इज अ थर्ड टाइप. Okay, this is third type of raster data. Number third type is graphic files. In this type of raster data we can include maps, photographs and images can be stored as digital graphic files. So graphic files में आपको ये important है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. GIF फाइल जिसे बोलते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG फाइल जिसे बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एंड JPEG जिसे बोलते हैं JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. सो ये रेस्टर के फॉर्मेट हैं, जो ग्राफिक फाइल टाइप के रेस्टर फॉर्मेट हैं, इसको आपको याद रखना होगा. नाउ दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स. ये हमारा फोर्थ टाइप का आपका रेस्टर डेटा है. तो हम इसी को समझने की कोशिश करते थे, जो मैंने आपको एलिवेशन की बात बताई थी. तो एलिवेशन की जो बात बताई थी, तो आप इससे समझेंगे. Basically, a digital elevation model consists of an array of uniformly spaced elevation data. A DEM digital elevation model is point based, but it can easily be converted to raster data by placing each elevation point at the center of the set. तो देखिए क्या है, जैसे सपोज ये देख रहे हैं आप, मनाली कुल्लू की अगर बात करें, इंडिया में मनाली कुल्लू देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हाइट, ये जो है लो हाइट के हैं और ये जो है हाई हाइट के हैं. तो बेस्ड ऑन एलिवेशन ये इसको क्लासिफाई किया गया है. ये देखिए आपने कुछ देखा होगा, ऐसा आपने डेटा देखा होगा कि ये जो पहाड़ है ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड है. तो ये जो है आपका एलिवेशन, ये वाला तो पिक्चर था, तो इसको डिजिटल एलिवेशन मॉडल में हाइट के बेसिस में बनाया जाता है. एंड द लास्ट टाइप इज डिजिटल ऑर्थोफोटोज. अ डिजिटल ऑर्थोफोटो क्वाड, DOQ बोलते हैं इसको, इज अ डिजिटाइज image prepared from an aerial photographs or other remotely sensed data in which the displacement caused by camera tilt and terrain relief has been removed. ये ध्यान रखिएगा, जब आप देखते हैं ऊपर से तो जो टिल्ट है और जो आपको थोड़ा साइड से टिल्ट दिखेगा वो रिमूव कर दिया जाता है. जैसे कि देखिए यहाँ से दिखेगा तो ये देखिए टिल्टिंग आ रही है, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है इस डेटा को. अगर आप ऊपर से देखेंगे सपोज ये टिल्टिंग आ रही है, तो डिजिटल ऑर्थोफोटोज क्वाड में क्या करते हैं, इसकी टिल्टिंग रिमूव कर देते हैं. तो हमारे ऑर्थो और जो हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू है वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल ऑर्थोफोटोज. तो ये रास्टर डेटा का फिफ्थ टाइप है. अब हमें बेसिकली क्लियर हो गया है कि वेक्टर मॉडल क्या होता है, रास्टर मॉडल क्या होता है. अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सपोज आप ऊपर से सेटेलाइट से कोई इमेज देखने, ये दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, आपको जो रियल वर्ल्ड दिखेगा ऐसे दिखेगा. और वेक्टर मॉडल आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, तो पॉइंट बनाएंगे, पॉलीगन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे. और रास्टर मॉडल में आप क्या बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे. आई थिंक ये आपको चीज़ क्लियर हो गई है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक्चुअल है, तो एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर से करेंगे. ठीक है, होम, ये हाउस है, हाउस बी, हाउस सी, हाउस डी, ये रास्टर में ऐसे किया जाएगा. ओके, सिमिलरली कोई टावर लाइंस हैं, तो टावर लाइंस दिखाने के लिए टावर लाइंस से जुड़ी रहेंगी, तो टावर लाइंस ऐसे जुड़ी रहेंगी. ठीक है, यहाँ से एक स्टेट से दूसरी स्टेट सपोज, और इसका वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा होगा. सिमिलरली कोई अगर एरिया है, कोई पैच है, कोई फील्ड है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, फॉरेस्ट है, तो उसको आप कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे, जबकि इसमें पॉलीगन टाइप बताएंगे. ठीक है,
तो सिमिलरली ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स मेंशन है। अब और डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज़ ये रियलिटी है, ये आपको ऊपर से सैटेलाइट से दिख रहा है, तो वेक्टर मोड में क्या होगा? हाँ, वेक्टर मॉडल में क्या होगा? ये देखिए, पॉलीगन 1, पॉलीगन 2, पॉलीगन 3, पॉलीगन 4, पॉलीगन 5, ठीक है, ये वेक्टर मॉडल बनाया गया है, ठीक है, वेक्टर मॉडल ऑफ रियलिटी है। अब हम इसको ज़रा रास्टर मॉडल को भी डिटेल में समझ लेते हैं। रियलिटी ऐसी है तो रास्टर मॉडल कैसे होगा? ऐसा होगा। इसमें क्या होगा? सेल्स होंगे और सेल्स में कोई डिजिटल नंबर होगा, ठीक है। So basically this is a raster grid where you can see there is a cell, the cell size is mentioned here, what each value represent, average cell value होती है यहाँ पे, what value at the cell center, value at the corner। suppose ये साइड का कॉर्नर की वैल्यू अलग होती है और सेंटर की अलग होती है। सपोज ये नो डेटा वैल्यू है इसमें, और अगर हम इसको रेस्टर ग्रिड को वेक्टर डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वेक्टर डेटा से वापस रेस्टर ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जैसे कि आपका रेस्टर डेटा है, अब इसको वेक्टर में कैसे करेंगे? इसको ज्वाइन कर लेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, ठीक है, तो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। लाइन से, लाइन आपको पता है लाइन वेक्टर टाइप का है, और वेक्टर को रेस्टर में करेंगे तो आपको फिर से सेल्स बनाने पड़ेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू। फिर जब लाइन जब ये कॉलम्स में आ जाएगा तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, तो सेल की वैल्यू है सबके अंदर, तो ये रेस्टर डेटा डेवलप हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो आपका यूनिट 3 का पहला पार्ट है स्पेशल डेटा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। जब ये चीज़ क्लियर हो गई है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको उसका मैनेजमेंट समझेंगे। फिर नेक्स्ट में हम रिमोट सेंसिंग कंसेप्ट है हमारा, एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इमेज प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। तो स्पेशल डेटा आपका क्लियर हो गया है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी दिक्कत हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन कर दीजिए, नहीं तो आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।